Dear students, my English loving friends, learners, welcome to my YouTube channel Learn English with RK. In this video lecture, we are going to discuss two important modal verbs, may and might, and we'll see their comparative study also. Before we start, we need to know the basic difference between maybe and may be. The very first thing that I want to tell you is maybe is a single word which means perhaps or possibly. Here maybe is an adverb जिसका प्रयोग हम किसी वाक्य के शुरू में करते हैं. For example, maybe he will come tomorrow means perhaps he will come tomorrow, possibly he will come tomorrow, शायद वह कल आएगा. So maybe we generally use in the beginning of any sentence and it is an adverb which means perhaps or possibly. Whereas may be, here may is a modal, be is the base form of the verb, and here we have two words, maybe. It means might be, we can say, possibility. It shows possibility. He may be late, he might be late. So keep in mind the difference between maybe and might be. Oh, maybe and maybe. Let's start the uses of may. The first use of may is to express formal request or permission or an offer. Keep in mind, here the request or permission that we are going to make is formal. Informal request के लिए हम क्या कर यूज़ करते हैं? Can. We have seen it. यदि आप किसी अपने बराबरी के व्यक्ति से, फ्रेंड से, सिस्टर से, ब्रदर से कोई अनुमति ले रहे हैं तो यू सिंपली यूज़ कैन. Can I use your pen? Can I use your mobile? But when you are seeking permission from an authority or an officer or your boss, then we use me because it is formal permission. So for example, may I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? It is formal permission. तो सामने वाला आपको परमिशन देना चाहे तो ही विल से यस यू मे सिट और यू मे नॉट sit here. So may not shows prohibition and someone has not given you permission. At the same time, you may sit means I permit you to sit. You can sit means you have the authority to sit. You don't need my permission. So we have seen it. Second example, may I see your Aadhaar card? You are seeking permission, or you may say you are making a request also. Or third example, may I have a biscuit? May I have a biscuit? You are seeking permission. यदि हम ऑफर की बात करें तो may I be of any help to you? क्या मैं आपके किसी काम का हो सकता हूँ या काम आ सकता हूँ? यानी may I help you? So you can use it to show offer also. Used to. We use may to express purpose. कोई उद्देश्य को व्यक्त करना हो तो हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के समय और देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे लिव. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें. वी कैन यूज हियर दैट आल्सो और इन ऑर्डर दैट. ये तीनों का हिंदी अर्थ ताकि होता है. इन ऑर्डर दैट, सो दैट और दैट. हम इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. वी ईट टू लिव. वी ईट टू लिव. सिंपल सेंटेंस. इट्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. So we use may to show purpose. One more example, he works hard. वह कठिन परिश्रम करता है so that or that he may earn his livelihood, ताकि वो अपनी जीविका कमा सके. I do physical exercise every day so that I may remain fit. So this shows purpose. Use 3. We use may to express wish.
और डिज़ायर इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए, विश को व्यक्त करने के लिए, किसी के लिए शुभकामना व्यक्त करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव हैप्पी जर्नी, मे यू प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड्स, तुम दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करो। मे दिस दिवाली ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, ये दिवाली तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाए। सो यू आर जस्ट मेकिंग अ विश। और मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सारे सपने साकार हो जाएं। सो वी यूज मे टू एक्सप्रेस विश। और वी कैन एक्सप्रेस कर्स आल्सो, है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मे यू डाई सून, तुम जल्दी मरो, है ना, बट वी शुडंट से लाइक दिस, दिस इज नॉट फेयर। यूज नंबर 4, वी यूज मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। इट मे बी इधर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। हम कैन से भी पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, पर मे वाली पॉसिबिलिटी कैन की तुलना में वीक होती है। कैन सोज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड मे सोज आई मीन टू से वीक पॉसिबिलिटी इन कंपैरिजन टू कैन। अभी हम इसकी कंपैरिजन माइट से भी देखेंगे। सो जैसे ही मे बी लेट, वो देर से आ सकता है, ही मे बी लेट इन कमिंग, वी आर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ही मे बी कमिंग टू सी यू टुमारो, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, वो कल तुमसे मिलने आएगा, आ रहा होगा, है ना। सो ही मे बी कमिंग टू सी यू टुमारो, सी कमिंग। प्लीज, यू हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days, यू मे बी टायर्ड, तुम 2 दिनों से नहीं सोए हो। सो वी आर मेकिंग अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे बी टायर्ड, तुम थके हो सकते हो। और वी कैन मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश जो है बादलों से ढका है। सो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। सो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लेबोरियस, ही मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो दिस वे वी कैन एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। 5th, यूज सी टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी वी आर नॉट श्योर अबाउट। हियर वी यूज मे प्लस हैव प्लस past participle form of the verb, third form of the verb, and here we can use might also, we get the same sense. The only difference is that may expresses a strong possibility whereas might expresses weak possibility. ये गैस करते हैं कि कोई काम हो गया होगा, we are not sure about it. For example, India may have won the match, or we can also use India might have won the match. शायद इंडिया मैच जीत गया हो, या हो सकता है भारत या इंडिया मैच जीत गया होगा। सो वी आर मेकिंग अ गैस हियर। सो पॉसिबिलिटी, सो इंडिया मे हैव और माइट हैव वन द मैच। माइट हैव वन द मैच, रिमोट पॉसिबिलिटी, कमजोर संभावना। मे हैव वन द मैच, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस में आप इसका क्वेश्चन मे या माइट को बाहर निकाल के ना बनाए। दैट डजंट साउंड नेचुरल। आई टेल यू, डू यू थिंक, ये ऐड करें आप। डू यू थिंक ही मे हैव हर्ड अस टॉकिंग, डू यू थिंक ही मे हैव हर्ड अस टॉकिंग। क्या तुम क्या सोचते हो उसने हमको बातचीत करते सुन लिया होगा? सो दिस इज द वे ऑफ फ्रेमिंग ए क्वेश्चन इन सच कंडीशन। Instead of saying may he have heard us talking is not right. Do you think? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करना हो तो जैसे she may have been watching the movie, you are just expressing a possibility. हो सकता है वो टीवी में मूवी देख रही होगी, या कहीं भी हो, he might be watching the movie in laptop, computer or in television set or mobile, anywhere. तो she may have been watching the movie, वो मूवी देख रही होगी। अब आपको क्वेश्चन बनाना है तो कैसा बनाएंगे? डू यू थिंक सी मे हैव बीन वॉचिंग द मूवी। सो यू गॉट इट। इन सच कंडीशन डू यू थिंक वी विल यूज टू मेक अ क्वेश्चन और सेंटेंस। नाउ वी आर कमिंग टू माइट। ठीक है, दोनों का उपयोग मोर और लेस सेम है। यूज नंबर 1 टू शो पॉसिबिलिटी, बट हियर द पॉसिबिलिटी इज रिमोट पॉसिबिलिटी, बड़ी कमजोर संभावना होती है यहाँ पर माइट द्वारा। सेम थिंग, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे,
may rain today, strong possibility. Might rain today, weak possibility. This is the only difference. He may come anytime, he might come anytime. Hindi meaning is same. The only difference is that may shows a strong possibility whereas might shows weak or remote possibility. देखिए पॉसिबिलिटी के क्रम को हम एक बार फिर से देखते हैं. माइट की पॉसिबिलिटी मे से कम होगी, मे की पॉसिबिलिटी कैन से कम होगी, कैन वाली पॉसिबिलिटी मस्ट से कम होगी, और इसके बाद तो पॉसिबिलिटी खत्म ही हो जाती है. फॉर एग्जांपल बहुत दूर से आपको कोई आ रहा है, आपको लग रहा है कि मोहन होना चाहिए, उसकी चाल से लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? जब आपको बहुत कमजोर संभावना 30% पॉसिबिलिटी, ही माइट बी मोहन. थोड़ा किनारे आया आपकी तरफ, ही मे बी मोहन, पॉसिबिलिटी बढ़ गई 50% पॉसिबिलिटी. और किनारे आया 60% पॉसिबिलिटी, ही कैन बी मोहन. और एकदम किनारे आ गया तेरा, ही मस्ट बी मोहन, मैं तो कह सकता हूँ कि वो मोहन ही होना चाहिए. और जब आपसे हाथ मिलाएगा तो ही इज मोहन, आई वॉज सेइंग. सो पॉसिबिलिटी ऑर्डर ऐसा होता है, मे और फर्स्ट माइट, देन मे, देन कैन, देन मस्ट, लाइक दिस. सी एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, परिश्रमी नहीं है. बट हु नोज ही माइट पास, पर कौन जानता है, वो पास भी हो सकता है. सो वीक पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी. और यदि वो ही इज हार्ड वर्किंग सो ही में पास, यदि वो हार्ड वर्किंग है तो ही में पास. चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फेयर. सेकेंड एग्जाम्पल है ना, ही माइट कम लेट, वो लेट आ सकता है, वीक पॉसिबिलिटी है. इट माइट रेन टुडे एज द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है, फिर भी बारिश के दिन है. इट माइट रेन, बारिश हो सकती है. सेकेंड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन. देखिए माइट से भी हम रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑफर को व्यक्त कर सकते हैं, मे से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर विनम्रता का भाव ज़्यादा होगा. वी आर मोर पोलाइट देन मे. वन मोर थिंग, जब आपके मन में कोई हेजिटेशन का भाव है, एक संदेह का भाव है कि सामने वाला नहीं तो नहीं बोल देगा मेरे को कहीं, तो ऐसी स्थिति में आप एक फियर पाल रखें आपके मन में. तो जब हम माइट का प्रयोग करते हैं कि माइट आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ कल्लू. सो यू आर हैविंग सम हेजिटेशन इन योर माइंड, आपके चेहरे पे वो भाव आएंगे. मे में वो भाव, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप, बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई रहेगा. मे आई यूज़ योर लैपटॉप, थोड़ा कम. माइट आई यूज़ योर लैपटॉप, सो हेजिटेशन मस्ट बी क्लियर ऑन योर फेस. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. और यू माइट टॉक बट स्लोली. यदि सामने वाले ने बोला कि भाई माइट वी टॉक, कि हम बातचीत कर सकते हैं, तो बोलोगे, आप परमिशन दे सकते हैं. यू माइट टॉक बट स्लोली, धीरे धीरे बात कर सकते हैं. दिस इज व्हाट टू टेक और गिव परमिशन, वी यूज माइट. जनरली इट्स नॉट कॉमन है ना, वी जनरली यूज कैन एंड इनफॉर्मल कंडीशन मे, बट वी डोंट यूज इट. बट इट इज इक्वल टू, वी कैन से कुड. कुड जैसी विनम्रता का बोध करता है. यूज 3, वी यूज मे पास्ट फॉर्म ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच. कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो जाए. जैसे ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. यू मे लीव द क्लास, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हम. सो ही सेड टू विल बिकम टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट यू हैज कम फॉर मी, सो that I might leave the class, तो may becomes might. It's a different thing. हम इसको विस्तार चर्चा करेंगे नरेशन जब पढ़ेंगे तो, कि हमने सेट टू का टोल्ड क्यों हुआ, दैट क्यों लगाए, यू का आई क्यों हो गया, दिस एंड दैट. यूज नंबर 3, टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी दैट डिड नॉट हैपन. ऐसी पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी पर नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल, ही माइट हैव बीन किडनैप्ड, उसे किडनैप किया जा सकता था, बट ही वॉजंट, पर उसे किडनैप नहीं किया गया. सो देयर वॉज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बीइंग किडनैप्ड बट ही वॉजंट किडनैप्ड. फिर यहाँ क्वेश्चन करना है, तो डू यू थिंक, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि ही माइट हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सकता था, बट ही वॉज नॉट कॉट रेड हैंडेड. अब क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बोलेंगे? डू यू थिंक ही माइट हैव बीन कॉट रेड हैंडेड. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस माइट हैव विथ 3 to show past possibility which did not happen. One more thing, we can use might
to express hypothetical condition, situation, or incomplete activity, as we have seen in case of would, could. Second conditional में अपन जानते हैं hypothetical condition होता है if a tiger came here we might run away, यदि शेर आ जाए तो हम भाग जाएंगे, बट आने की संभावना कम है तो we won't leave, we won't run away. और if you had worked hard you might have got good marks, यदि कठिन परिश्रम किए होते तो अच्छे अंक मिल गए होते, so but you did not work hard, that's why you did not get good marks. तो ये second और third conditional में भी we can use might. It's all about may and might. I hope everything is quite clear to you. Once again I tell you, please do subscribe, share, like and comment. Thank you very much.